ویلکم بیک شادی بیاہ میں. اور ہم ویسے اب دل چاہ رہا ہے فجر کے جلدی جلدی کسی کی شادی ہو اور ہمارے پروگرام کے توسط سے ہو تاکہ ہم بھی جائیں شادی کو کورنگ کریں جا کے اور شادی کا کھانا اللہ گلہ بھی جا کے دیکھیں جا کے شادی کا. ڈاکٹر صاحب سے ٹپس ہم لیں گے لیکن بات ہم کر رہے تھے شرازی صاحب سے. شرازی صاحب 18 سال میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں بہت سارے کمپرومائزز، بہت سارے اتار چڑھاؤ. کیا سمجھتے ہیں آپ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کون سی ایسی ٹپس ہیں جو آپ یہاں بتانا چاہیں گے آج؟ یہ جو شادی کا پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا، یہ اگر آپ کی مرضی سے ہو اور اس میں آپ کے والدین بھی شامل ہوں اور اگر آپ کو آپ کے مزاج کا پارٹنر مل جائے تو زندگی بہت ہی پیاری گزرتی. جو کہتے ہیں نا دنیا میں یہ جنت ہے، وہ ٹھیکا ہے. بہت ہی مقدس رشتہ ہے. ایک گیو اینڈ ٹیک والی زندگی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے آپ اکیلے ہوتے ہیں، بیچلر ہوتے ہیں، آپ کی اپنی لائف ہوتی ہے، دن رات آپ کے اپنے ہوتے ہیں، کیجول سی لائف آپ گزار رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ کی زندگی میں ایک آپ کا جیون ساتھی شامل ہوتا ہے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اپنی چھوڑنی پڑتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. یہ ایک بہت ہی کامیاب ازدواجی زندگی کا نسخہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. کمپرومائزز جو ہیں یہ زندگی میں لچک جب تک آپ اپنے رویے میں نہیں لاتے، کیونکہ اس سے پہلے کی جو لائف ہوتی ہے ماں باپ کے گھر کی جو لائف ہوتی ہے وہ لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی ماں باپ کا لاڈ پیار جو ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی ریئل پریکٹیکل لائف جو شروع ہوتی ہے. بارسلونا اسپین سے ہمارے ساتھ کال رہا فجر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید ظفر علی شاہ بارسلونا اسپین سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ظفر، کیا حال آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی بخاری صاحب اور آپ سب کے آپ کی ٹیم کو ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارک اس پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ بہت افیکٹو پروگرام ہے خاص طور پہ جو ہم لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں اور ان کے لیے اور یو کے کے لیے بھی. بخاری صاحب آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے اور میں شروع دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں. اچھا شاہ صاحب کیسے ہیں آپ اور فیملی کیسی ہے آپ کی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کا. فیملی بھی ٹھیک ہے. جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور کیونکہ اب تو میرے خیال میں پہلے مطلب ہے کہ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں اسپین یا بارسلونا میں جو پہلے آئے ہیں. اب جو نئی جو لوگ آئے ہیں وہ اب میرے خیال میں سنگل ہے، لیکن اب میرے خیال میں فیملی کا ٹرینڈ وہاں پہ بھی ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی فیملی بنانی شروع کر دی ہیں. اب ظاہر ہے جو فیملیز جن کی آ رہی ہیں پھر ان کو آگے بچوں کی جو زندگیاں اور ان کی جو شادیاں ہیں ان سے وہ بھی کنسرن ہے. سو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پروگراموں سے فائدہ ہوگا یورپین کمیونٹی کو بھی؟ بہت زیادہ بھائی صاحب، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میری آج کی کال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بارسلونا میں چونکہ میجورٹی آپ 2-3 دفعہ بارسلونا آ چکے ہیں ڈی ایم کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے ہیں. تو بارسلونا میں ابھی تک وہ یو کے والا سسٹم نہیں بننا، جیسے وہاں پہ رشتے بھی ہوتے ہیں، فیملیاں بھی کرواتی ہیں. تو جو یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ یقین کریں بہت سے دوستوں نے مجھے کال کی کہ یار یہ ڈی ایم کا پروگرام چل رہا ہے، آپ نے سنا؟ میں نے کہا جی میں جس دن سے شروع ہے اسی دن سے دیکھ رہا ہوں بخاری صاحب کا پروگرام، اور انشاءاللہ میں ٹرائی کر کے کال بھی کروں گا. اور رشتوں کے حوالے سے یہ بہت زیادہ، چونکہ فیملیاں ابھی ہر روز بڑھ رہی ہیں. جی بالکل اور ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی پہ یہاں پہ پنجاب سے ہیں، پھر پنجاب کے جو گجرات 75-80% لوگ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں، باقی شہروں سے بھی ہیں پر کم ہے. اور ابھی جو فیملیاں آ رہی ہیں وہ تقریباً ان کے بچوں کی عمریں بھی 18 سے 20 سال، 19 سال، 18 سال، 17 سال، بہت زیادہ لوگوں کی آ رہی ہیں. تو یہ پروگرام اس حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ مدد کرے گا ان فیملیوں کو جو کہ اچھے رشتے چاہتے ہیں اسپین میں، اسپین سے باہر یورپ میں، کسی جگہ بھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بڑا فائدہ ہوگا. جو بات آپ نے کی ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے اگر یو کے والے تھے وہ یو کے میں ہی دیکھتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اگر یو کے والوں کو اگر اٹلی میں کوئی رشتہ ملتا ہے یا اسپین میں ملتا ہے یا ڈینمارک میں، ناروے میں کہیں بھی، یا ناروے والوں کو ادھر ملتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے کم از کم ہم نے سب کو جو ہے وہ ایک کنیکشن دے دیا کہ آپ شادیبیاہ.com پہ جائیے اور آپ نے اپنی پروفائل اپلوڈ کی دیے وہاں پہ. اس پروگرام میں کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بیٹا، بھانجا، بھتیجا یا بھتیجی. جیسے علی نے کال کی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ
कहीं भी हाँ, किसी भी मतलब यूरोपियन कंट्री से भी चाहे कहीं हो। से भी हो सकता है, मतलब ये मिलना तो आपको वही है जो आपके नसीब में लिखा है, लेकिन यह है कि कोई ना कोई सोर्सेज जो हैं, ज़राया जो हैं वो ज़रूर होते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, बात जो की शरादी साहब ने, आपने गुफ्तगू सुनी इनकी, क्या समझते हैं आपके कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी जो है, ये तो सारी टिप्स इन्होंने दी, लेकिन कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का जो स्टार्ट होता है वो शादी से होता जा रहा है। तो शादी से पहले जो जाते हैं, पहले जो बातें मेरी जो है ना मेरे ख्याल में रास्ते में रह जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो बंदा है ना उसकी कॉल लेनी बड़ी ज़रूरी है। और वो हैं जी कैंडिडेट जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन किसी मसले की वजह से वो नहीं आ सकी। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे आज के प्रोग्राम की कैंडिडेट तबस्सुम साहिबा। जी फजर, तबस्सुम से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक जी। रेडी हैं आप क्वेश्चंस हेलो? के लिए? हेलो हाँ जी बोले। जी, मैंने कहा आप रेडी हो क्वेश्चंस के लिए? हाँ मैं रेडी हूँ। अच्छा बताएं, आपकी एज क्या है तबस्सुम? टीवी की आवाज बंद करें, टीवी की आवाज बंद करें, या टीवी से थोड़ा सा हाँ दूर जी हो बोले। जाएं। टीवी की आवाज पहले बंद करें आप प्लीज। हेलो। हाँ जी कर दिए। थैंक यू जी। अच्छा आप बताओ जी, आपकी एज क्या है? एज बताना जरूरी है? लड़कियों से एज नहीं पूछते। आइडिया फिर होगा ना वो नहीं, ये एज हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है उसको चाहिए होगी, तो इसलिए ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उनको पता होगा कि तबस्सुम की एज क्या है, या किस एज। 27 है मेरी एज। सॉरी क्या है? 27। 27। अच्छा, और आपको जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे आइडियली हाँ जी। उनकी क्या एज होनी चाहिए? 35 36 समथिंग। ठीक प्लस ठीक ही हो ना, मुझसे तो प्लस हो ना। आपसे अच्छा। प्लस, छोटी उम्र वाले नहीं होने चाहिए। तो ठीक है। आ गई हैं, अब उनको तंग नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल हाँ जी? ठीक है। 35 मतलब आपसे ज्यादा होनी चाहिए उनकी एज जो है। उनकी ज्यादा होनी चाहिए, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो क्या बस कर रही हैं तबस्सुम? आजकल आप यूके में हैं, आप आपका स्टेटस यहाँ पे क्या है? आप आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। अच्छा, मैं मेरे ख्याल में मैं कंट्रोल रूम से कहता हूँ जी कि आप की आवाज़ चेक करते हैं, या दोबारा आपको कॉल मिलाई जाएगी, तो इसलिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं आपको प्रोग्राम को, और आपको सुन रहे हैं। सो बात हम करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से मैंने जो गुजारिश की कि अज़दवाजी ज़िंदगी का जो आगाज़ है वो है शादी से, और शादी से पहले जो ब्यूटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले ऐसा था कि स्पेशली जो लड़के वाले थे हमेशा रिश्ता वही देखने जाते थे, लड़की वालों की बारी बाद में आती थी जी। और हमारी जो आंटियाँ थीं या जो हमारी माएँ थीं वो कम से कम 150 लड़की को तो रिजेक्ट करके उसके बाद बेटे की शादी करती थी, तब तक बेटे के दांत जड़ने शुरू हो जाते थे। चांद जैसी दुल्हन। वो जो चांद जैसी दुल्हन होती थी, और उसके बाद फिर वो सुगड़ भी चाहिए साथ, कि वो सिलाई कढ़ाई जानती हो, उसको कुकिंग करनी आती हो। स्पेशल जो है वो उस दिन का जो खाना होता था वो उस लड़की ने ही बनाना है। जिस दिन वो उसको देखने के लिए जा रहे हैं वो खाना ला के रखना है आगे, फिर वो खाना जब उन्हें खाना है तो उसके बाद फिर देखना है कि ये वाकई इस काबिल है या नहीं है। अब जो है मेरे ख्याल में वो ज़माने तो ख़त्म हो गए हैं कि अब मेरे ख्याल से तो एक तरह से लड़कियों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है, क्योंकि लड़कियां एजुकेटेड भी हैं, लड़कियों को अब घर भी संभालना है और बाहर काम भी करना है, करियर भी बनाना है। हाँ, तो सही बात है। इसीलिए अब लड़के वाले जो ना, अब वो सिलाई कढ़ाई वाला या वो खाने पकाने वाली वो दुल्हन नहीं ढूंढते। उनको पता है कि अब तो रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, फ्रोजन या टेक अवे जिंदाबाद। वो अब लड़की देखते हैं कि लड़की में गुर क्या है, मतलब गुर से मुराद है कि लड़की ने कौन सी डिग्री की हुई है, लड़की प्रोफेशन किस में है, ठीक है। शक्ल सूरत जो है ये एक मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल चीज़ है। हर जो वालिदैन है या जो हर लड़का जो है वो यही चाहेगा कि मेरी जो बीवी है वो चांद सी हो। अब चांद सा जो कहना हुआ है वो हर बंदे का एक अपना चांद होता है, उसके ज़हन में उसने बनाया हुआ। जरूरी नहीं है कि मतलब एक सही वैसी बात है कि अगर किसी को गोरा रंग पसंद है तो मतलब किसी को सांवला रंग पसंद है, किसी को मतलब कि पतले नक्श पसंद है, किसी को मोटे पसंद है। तो हर बंदे के ज़हन में एक अपना चांद होता है। लेकिन ये जो आपने बात की थी शुरू में, वो ये जो हम आज यहाँ पे करना चाहते हैं वो ये कि ब्यूटी को जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है ही, लेकिन उसमें निखार अगर आप लाना चाहते हैं तो कम अज कम आप राइट वे यूज़ करें, रॉन्ग वे यूज़ ना करें कि आप जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी आप ख़राब कर दें उसमें निखार लाते लाते। जी तबस्सुम है जी फजर लाइन पे। हेलो तबस्सुम।
हाँ जी मैम बोलिए। जी, अब आपको आ रही है हमारी आवाज़? हाँ अब आ रही है। अच्छा, चलें तो फिर बताएं आपको किस तरह के लाइफ पार्टनर की तलाश है? बस फैमिली की इम्पोर्टेंस समझने वाला हो, फीलिंग वाला हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक, तो ठीक है। ठीक। अच्छा, आप यहाँ पे खुद क्या करती हैं? मैं यहाँ पे स्टडी के लिए भी आई हूँ और ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ साथ साथ में। ओके, दैट्स गुड। तो आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद से। और आपको इस चीज़ की फिक्र है कि वो भी जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से हो, किसी सिटी से हो? नहीं मुझे ऐसा कोई नहीं है कि बस वो मुस्लिम हो, बस यही बात है मेरी। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ जी। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अलाउ किया आपको कि आप अपना जीवन साथी ढूंढें और फिर हमें बताएं, हमारी मर्जी भी उसमें शामिल होगी? आपको मैंडेट मिला घर से? हाँ परमिशन तो मेरे घर वालों ने दे रखी है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का मिलता है, जैसे अच्छी फैमिली मिलती है, तो तुम बात करके हमसे बात करो। अगर हमें अच्छा लगा तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे ना। बहुत अच्छी फैमिली को साथ लेके ही चलूंगी ना मैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आप ये चाहती हैं कि शादी के बाद आप यूके में ही सेटल हों? हाँ चॉइस तो भी मेरी यही है, पर सोचती हूँ कि पहले मैं अपनी स्टडी भी कंप्लीट करूँ और अगर यहाँ पे सेट हो तो सबसे अच्छी बात है ना। ठीक है। और आप शादी के बाद काम करना चाहेंगी कि यू वांट टू बी अ हाउसवाइफ? ये दोनों की कह सकते हैं कि दोनों की सलाह से होगा। अगर वो चाहेगा कि मैं काम करूं तो भी ठीक है, अगर वो नहीं चाहेगा तो भी ठीक है। पर मेरी जहाँ तक तमन्ना है कि मैं काम अपना कंटिन्यू रखना चाहूंगी। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, ये जो होता है अपना तबस्सुम के, जो वो कहते हैं जी कि वो सुगड़ बहू होनी चाहिए। सुगड़ बहू के मीनिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी उसमें चीज़ें आती हैं। तो आप वैसे सुगड़ हैं, मतलब है कि ये कुकिंग वगैरह और ये सारा काम जो है होते हैं जो लड़कियों के आजकल जो ये बात तो है ना। अच्छा, कुकिंग करनी आती है आपको? हाँ कुकिंग तो माशाल्लाह मैं क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं? हाँ जी। वैसे मैं वेजिटेरियन अच्छी हूँ। अच्छा। हाँ जी। सब्जियां बनाती हैं? हाँ सब्जी बना लेती हूँ, आमलेट बना लेती हूँ। अच्छा बना लेती हूँ। कभी आपको बना के खिलाऊंगी फिर आप बताना। बस ठीक है, आप हम नेक्स्ट थर्सडे से पहले आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर हम एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, पहले मैं आपको ही खाना खिला दूँ। नहीं बिल्कुल, हम आपकी शादी का खाना खाएंगे। अल्लाह करे कि आपकी शादी जल्दी जल्दी हो, यहीं पे हो, और जरूर हम आपकी शादी का खाना खाएंगे। लेकिन फिर वो तो कुक बनाएगा ना। अच्छा ये बताइए कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो ये दुआ करती हैं कि या अल्लाह जहाँ मेरी शादी हो, जो मेरा होने वाला खामद है उसकी ना तो माँ हो, ना उसका कोई बहन भाई हो आगे पीछे, अकेला हो, बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो। और नहीं ये एक विश है। आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी मेरा ये ड्रीम नहीं है। अच्छा ठीक है ना। मैं ज्वाइंट फैमिली से आई, तो मुझे ज्वाइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस कब पता है। ठीक है ना, क्योंकि फैमिली के साथ रहने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। नहीं, आप जिस ज्वाइंट फैमिली में से आई हैं वो फैमिली है ज्वाइंट फैमिली विद मदर एंड डैड। अब जब आप जाएंगे किसी ज्वाइंट फैमिली में, वो होगी विद मदर इन लॉ एंड विद फादर इन लॉ। तो आप मदर इन लॉ वाली ज्वाइंट फैमिली जो है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार है मेंटली? नहीं देखिए, ये अपनी नजरिया है ये अपना। ठीक है कि आप जो आपका खावंद है उसके अम्मी अब्बू को किस नजर से देखते हैं। बहुत अच्छी बात। एक तो होता है ना कि हमारे जी मेरा मदर इन लॉ है, ये मेरा फादर इन लॉ है। अगर आप ये फादर इन लॉ निकाल दें तो सिर्फ फादर बचता है। ठीक है, इन लॉ निकाल दे तो ठीक ये है। देखने का नजरिया है। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे अपना अम्मी अब्बू ही मानूंगी। बहुत अच्छी बात। वसम अल्लाह ताला आप जैसी हर लड़की हो और हर लड़की की यही ख्वाहिश हो। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों के साए तले रहना। अगर आप माँ बाप के घर से निकल के आ रहे हैं, माँ बाप के साए से निकल के आके अगर आप सास ससुर को भी माँ बाप समझते हैं और उनके साए तले रहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लाइफ के जो है ना, जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, वो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं जब आप सास ससुर को माँ बाप समझ के आप उनके साथ रहते हैं। बहुत अच्छी बातें की आपने। तो वसम कोशिश करें कि आपने मेरे ख्याल में प्रोफाइल अपनी जो है वो अपलोड की हुई है हमारे वेबसाइट पे। हाँ जी सर, मैं अभी करूंगी इंशाल्लाह। चलें, आप अपनी प्रोफाइल अपलोड कर दें और कांटेक्ट नंबर आपका है हमारे पास। इंशाल्लाह ताला जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो जी, आपने तबस्सुम की बातें सुनी, और अगर आप पर्सनली तबस्सुम को मिलना चाहें या आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। सुबह से तबस्सुम की जो प्रोफाइल है वो अपलोड हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तबस्सुम, थैंक यू सो मच। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।
جی ڈاکٹر صاحب اس میں مظہر چونکہ آپ شادی کے حوالے سے پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شادی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، بیوی جو ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جمال ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں آپ کے سوال بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ شادی سے پہلے خوبصورتی وغیرہ کا کچھ چیزیں اور جو پہلے ٹرینڈ تھے اور آج کل کے جو ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اس میں یہ اچھی بات ہے کہ لوگ زیادہ کھلے ذہن کے ہو گئے ہیں، لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، تو وہ جو پرانے ہمارے اوپر کچھ ٹیبوز تھے، ہمارے اوپر جو سوشل کلچرل یا وہ غلط ملتانی مٹی سے اب باہر آ گیا حسن جو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، یہاں پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔